हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरल स्टडी सर्कल पे। और आज आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक्स परसेंटेज। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे YouTube चैनल के 1K फैमिली कंप्लीट करने के लिए। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। टुडेज टॉपिक परसेंटेज। Before we start the topic, we are discuss about the basic of percentage. Percentage is that fraction. Those denominator already is in the form of 100. If we talking about 1 in the fraction, so that mean 100%. If we talking about 1 upon 2, it means half percentage. It means 50%. Then we talking about 1 upon 3 fraction, then in the percentage 33 mixed 1 upon 3%. 1 upon 4th part, it means 25%. 1 upon 5th part, it means 20%. 1 upon 6th part, 16 mixed 2 upon 3%. 14 mixed 2 upon 7%. 1 upon 8 equals to 12 mixed 1 upon 2%. 1 upon 9, 1 upon 10, 1 upon 12. 11 mixed 1 upon 9%. 10%. 8 mixed 1 upon 3%. These are the some common fraction in the form of percentage. Well, first of all, we discuss about how to convert fraction in the form of percentage. As like for example, we have a fraction 2 upon 4, then we convert in the form of a percentage, that's 2 upon 4 into 100. Okay, then divide by the 4 100, it divided by 4 in 25 time. 25 to the 50%. Okay, now we discuss about percentage convert into the form of fraction. As like 36%, we convert in the form in fraction, then we started 36 upon 100. Okay, then we divided each other by the 4. 9 4s are 36, 25, then 9 upon 25 is the answer in the form of fraction. If 600 is 37 mixed 1 upon 2% of any number, then what the 62 mixed 1 upon 2% of this number?
हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 600 इज 37 मिक्स 1/2% ऑफ एनी नंबर्स देन व्हाट द 62 mixed 1/2% of this number. Then we start with the x. Let the x of a number, then 37 mixed 1/2% equals to 600. Okay, then x into 37 to the 74 plus 1 75/2 equals to 600. देन x परसेंटेज दिया हुआ है हमें, तो क्या करेंगे हम, इंटू 75 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 600. x इक्वल्स टू 600 इंटू 2 इंटू 100 देन 75. हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम डिवाइड होगा. ठीक है, देन वैल्यू ऑफ x इज 1600. 8 टू जा 16 और 100 16 जा 1600. देन नंबर ऑफ x इक्वल्स टू 1600. नाउ 1600 इंटू 62 मिक्स्ड 1/2%. देन 1600 इंटू 62 टू जा 124 प्लस 1 125/2. हमें परसेंटेज दिया हुआ है, इंटू 1/100 1 2 1 2 2 8 जा 16. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 इज द आंसर. If we increased 12 mixed 1/2% in a number, we get 63. Then find the number. Guys, क्वेश्चन है, if we increase 12 mixed 1/2% in a number, we get 63. then find the number. तो गाइस हमने पहले ही देखा है कि जो मैंने परसेंटेज बताया था आपका फ्रैक्शन में कि 12 मिक्स्ड 1/2% कितने का आएगा हमारा, 1/8 का इक्वल्स टू 12 मिक्स्ड 1/2%. देन गाइस 1/8 इक्वल्स टू 9/8. देन 8/9 इंटू 63. 9 7 जा 63, 8 7 जा 56. 56 is the answer. Guys, next question is, if in a town their population decrease at the rate of 5% per year, if their present population
6859, then what the population before 3 years? क्वेश्चन है, if any a town their population decrease at the rate of 5% per year, if their present population 68,590, then what the population before 3 year? देखिए 5/100%, मतलब परसेंटेज रखा है तो 100 लगा लेंगे हम नीचे, तो ये एज अ फ्रैक्शन क्या होगा 1/20। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने लेट किया कि अगर उसकी 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन जो है वो x है, तो ये क्या हो जाएगा x/120। ठीक है, देन अगर हम इसे x में से माइनस करते हैं x/20, तो एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 20x माइनस x इक्वल्स टू 19/20x। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां x रखकर 68,590 इंटू 3 साल पहले, तो मतलब 3 महीने जो हमारा टाइम होगा 3 होगा, तो इसे हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे 20/19, 20/19, 20/19। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम। देखिए 19, तीनों 19 से इसे काटोगे तो ये 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000, मतलब कि उसकी जो 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 18,000 होगी। अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया जाए जैसे 0.05 इक्वल्स टू परसेंटेज हमें फाइंड करनी है इसकी कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ओके, तो यहां डेसिमल में दिया हुआ है तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 0.05 अपॉन में 12। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू, ठीक है 100 से ये तो पॉइंट कट ही गया, 100 से 100 कट जाएगा तो ये बचा 5%। तो मतलब जो हमारा 0.05 है वो किसके इक्वल होगा 5% के। ओके, नेक्स्ट है 22.5% इक्वल्स है किसके, तो सीधा सा होगा 22.5 अपॉन 100, 22.5/100, परसेंटेज हटा के हमने 100 रखा, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो गया 225/1000। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 0.225। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63% ऑफ 3 mixed 4/7 इज इक्वल्स टू, देखिए कैसे करेंगे इसे, 63% मीन्स 63/100 इंटू 7 3 जा 21 और 4 25/7, 7 से इसे काटेंगे 9, इससे इसे काटेंगे 4, तो ये आएगा हमारा 9/4 आया, तो इससे इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 2.25।
if 218% of 1674 equals to 1800, तो क्या करेंगे, इसके 218 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू 1674, ठीक है, इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन मार्क की जगह x रखेंगे इंटू 1800, ओके। अब ये x इंटू 1800 है, 18 को हम इधर ले आएंगे, मिक्स्ड में नीचे आ जाएगा ये, तो डिनोमिनेटर में आएगा तो 218 इंटू 1674 अपॉन 100 इंटू 1800। अब इससे इसे काटेंगे तो 2.18 इंटू इससे इसे काटेंगे तो ये 100 से काटा ये आया, इसे काटेंगे तो 16.74, ओके। अब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3534 आंसर। Next question. 8 makes 1/3% of x equals to 150। तो हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। देखिए कैसे करेंगे, इसे हम 8 3 से 24 और +1 25/3 इंटू 100, परसेंटेज को हटा के हमने 100 रखा, इंटू x इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू 150 इंटू 300 अपॉन 25, ठीक है। 25 6 100, 25 6 150, x इक्वल्स टू 1800 आंसर। If 12.5% of 192 equals to 50% of x, 12.5 upon 100 into 192 equals to 50 upon 100 into x, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा, अब इसे पॉइंट हटाने के लिए हम एक जीरो लगा देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा 125 इंटू 192 इंटू 100 अपॉन में 1000 इंटू 50, 52 जा 100, ओके। इससे इसे काटेंगे 8 से इसे काटो, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारा 42, 24 2 जा 48 आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच percentage, how much percentage 3% of 5%, मतलब 3% 5% का कितना परसेंटेज है। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के नीचे 100 रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3/100 इक्वल्स टू, ये होगा हमारा 5/100 इंटू एक्स, एक्स का परसेंटेज। ठीक है, तो इसे अब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 3/100 इंटू 100/5 इंटू 100। ठीक है, 5 से इसे काटोगे 20, इसे 100 से 100 को काट दोगे, ये आएगा एक्स इक्वल्स टू 60। तो मतलब अगर एज ए परसेंटेज देखा जाए 3% जो है हमारा 5% का, अब वो नंबर्स में हमारा 60 मोर देन है। X percentage of 130 equals to 11.7. Then find the value of x. तो x upon 100 into 130 equals to 11.7. x equals to 11.7 into 100 अपॉन में 130 इंटू 10, पॉइंट हटाइए, 10 से 10 गई, ये भी कट जाएगा, 13 9 जा 117, x इक्वल्स टू 9 आंसर। Next question is 240 is how much percentage of 90। क्वेश्चन है 240 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 90। तो देखिए कैसे करेंगे, 240 अपॉन 90 इंटू 100, 10 से 10 कट जाएगी इसकी, 3 से इसे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक है, अभी 18 और 10 है, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 800 अपॉन में 3, इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 266 2/3%।
अगर इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो कैसे पूछेगा, देखिए 1/37 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 2/7। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1/35/2/7 परसेंटेज में निकालना है, 100 आ जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1/35 इंटू 7/2 इंटू 100, इसे काटेंगे 50 आया। ठीक है, फिर इसे काटोगे 5 से इसे काटा 10, तो 10% इज आंसर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए 7.2% ऑफ 80, अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो √7.2% ऑफ 80 इक्वल्स टू, कैसे करोगे, तो देखिए 7.2% है, रूट के अंदर ही लेंगे इसे हम, 7.2/100 इंटू 80, पॉइंट से 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगी, ये आएगा 72 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 576/100। तो 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, तो नीचे 100 है, 110 का होगा, 24/10 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा 24/10, 10 से इसे काटेंगे तो 2.4, ये हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए 25% ऑफ 25% इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, देखिए 25/100 इंटू 25/100, दोनों को काट देंगे इन्हें आपस में, 25 से इसे काटोगे 4, इससे इसे काटोगे 4, तो 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, तो इससे इसे काट दो, यह आएगा 0.0625 आपका आंसर होगा। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 25 की मल्टीप्लाई 25 से 625, 100 10,000, इससे इसे काटा, अपने पास 0.0625, यही आंसर आएगा। ठीक है, सेम आ गया।